اور خانوادہ برکات کا چشم چراغ اعلان کرتا ہے آدھی روٹی کھائیں گے اور بچوں کو سبحان اللہ. یہ صرف ماررہ کا اعلان نہیں ہے، رسول پاک کا مشن ہے، یہ انقلاب ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لایا ہوا. اگر تم جاہل رہو گے، بے نور رہو گے، جاہل آدمی حلال و حرام میں تمیز نہیں کر سکتا، جاہل کو کفر اور ایمان پتہ نہیں ہے، جاہل کب گمراہ ہوگا اسے خود پتہ نہیں چلتا. اس لیے میرے عزیزوں، علم کے بغیر اسلام بھی نہیں ہے، علم کے بغیر اسلام نہیں. آپ کو پتہ ہے دور جہالت کہا جاتا ہے اسلام سے پہلے والے دور کو، اور دور اسلام، اسلام کے بعد. اسلام اور جہالت تو اپوزٹ چیزیں ہیں. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے جو رحمان و رحیم ہے، تمام کائنات کو بنانے والا ہے اور ہمارا خالق اور مالک ہے. اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو اللہ کی آخری نبی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، آج میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو لے کر آیا ہوں. آج کا عنوان ہے علم سیکھنا فرض ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، آج کل کا مسلمان علم سیکھنا کیوں نہیں چاہتا ہے؟ معزز سامعین اکرام، آپ سوچے ذرا، اگر علم نہیں سیکھیں گے تو علم کے بغیر نماز کیسے پڑھیں گے؟ اسلام کے مسئلہ مسائل کو کیسے سمجھیں گے؟ اگر ہم اور آپ علم نہیں سیکھیں گے تو حرام اور حلال میں کیسے فرق کر پائیں گے؟ معزز سامعین اکرام، علم ایک ایسا تالا کی چابی ہے جو جانور اور انسان میں فرق پیدا کر دیتا ہے. اللہ کے نبی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علم سیکھنا ہر بندہ مومن پہ فرض ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد. اگر علم نہیں سیکھیں گے تو یاد رکھیے کہ آپ گنہگار ہیں. تو آئیے ہم بڑھتے ہیں اپنی اس ویڈیو کی طرف. محبت کے ساتھ اس ویڈیو کو ہم اور آپ مل کر پلے کرتے ہیں. اس نے انسان کو بنایا. مجھے ایک بات بتاؤ، رحمان دوسرے نمبر پر آئے تھے، اس نے قرآن سکھایا. تیسرے نمبر پر آئے تھے، اس نے انسان کو پیدا کیا. انسان کو پیدا کیا یہ تیسرے نمبر پر، قرآن سکھایا یہ پہلے دوسرے نمبر پر. جب انسان بعد میں پیدا ہوا ہے تو قرآن سکھایا کس کو؟ کیا بات ہے، واہ واہ. الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا پھر انسان بنایا. مفسرین فرماتے ہیں یہ جو انسان پیدا کیا اس سے مراد آدم علیہ السلام ہے، اور قرآن سکھایا اس سے مراد محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. اور رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس وقت علم دیا ہے جب ابھی آدم کو پیدا بھی نہیں کیا. معلم کائنات کی امت ہو میرے عزیزوں، معلم کائنات کی تم امت ہو، اور جاہل رہنا تمہیں زیب دیتا ہے؟ اس رسول پاک کی امت ہو جس نے پوری کائنات کو علم کا انقلاب دیا ہے. علم کا انقلاب. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے، 6 لوگوں کو صرف لکھنا آتا تھا. قلم پکڑنا کتنے لوگوں کو آتا تھا؟ 6 لوگ. 10 سال کا عرصہ گزرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت 80,000 لوگوں کے ہاتھوں میں قلم تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ انقلاب زندگی بھر کا کوئی ٹیچر بھی نہیں کرتا. وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علم کا عظیم انقلاب پیدا کیا تھا. اور اس رسول کی امت اگر جاہل ہو یہ کیسے زیب دیتا ہے؟ اسی لیے میں نے دیکھا ہے بہت ساری جگہوں پر بڑی بڑی تحریکیں چلتی، لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سچا جانشین، ان کی آل و اولاد کا یہ سچا جانشین ماررہ مطہرہ کا اور خانوادہ برکات کا چشم چراغ اعلان کرتا ہے آدھی روٹی کھائیں گے اور بچوں کو سبحان اللہ. یہ صرف ماررہ کا اعلان نہیں ہے، رسول پاک کا مشن ہے، یہ انقلاب ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لایا ہوا. اگر تم جاہل رہو گے، بے نور رہو گے، جاہل آدمی حلال و حرام میں تمیز نہیں کر سکتا، جاہل کو کفر اور ایمان پتہ نہیں ہے،
जाहिल कब गुमराह होगा उसे खुद पता नहीं चलता। इसलिए मेरे अजीजों, इल्म के बगैर इस्लाम भी नहीं है, इल्म के बगैर इस्लाम नहीं। आपको पता है दौरे जिहालत कहा जाता है इस्लाम से पहले वाले दौर को, और दौरे इस्लाम, इस्लाम के बाद। इस्लाम और जिहालत तो अपोजिट चीजें हैं, ये कभी एक जगह आ नहीं सकती। आज उम्मत के अंदर हम देख रहे हैं कुछ लोगों को मैंने देखा अंदर, जिनसे पूछा गया पहला कलमा क्या है तो आई टाई कर रहे हैं, नहीं पता है। तुम्हारे नबी कौन, ये भी नहीं पता। हम तो इस खुशफहमी में चल रहे हैं, जुम्मा में भीड़ है, जलसों में भीड़ है, सबकी टोपी है, सबको आता होगा। खंगालो तो कलमा भी नहीं आ रहा है। यूं ही ये मुसीबतें नहीं आ रही है मेरे अजीज, यूं ही हमको डराया और धमकाया नहीं जा रहा है। तुम्हारे अंदर इल्म की दौलत हो तो तुम अपने रब तबारक व तआला की जात पर यकीन कामिल के साथ जियोगे। आज दुल्मुल यकीन के साथ जो जीते वो जिहालत की वजह है, जिहालत है। और जो जिस तरह हाँकना चाहे आज हाँक रहा है तुम्हें। इल्म की तरफ आओ, इल्म की तरफ। हर बच्चे को आज पढ़ा लिखा हुआ होना जरूरी है, हर बच्चे को। और जब हम इल्म की बात करते हैं तो कुछ लोगों को ये लगता है मौलाना सिर्फ मदरसों में ले जाने की बात करते हैं, मदरसों में ले जाने की बात करते हैं। इल्म सिर्फ मदरसों की बात नहीं है। इल्म को जो फर्क किया गया है ना, ये दीनी इल्म है, ये दुनियावी इल्म है। अभी आपसे मैं पूछूं दीनी इल्म क्या है, दुनियावी इल्म क्या है, आप यही कहेंगे कुरान, हदीस, फिका, ये सारे दीनी इल्म है। साइंस, ज्योग्राफिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये दुनियावी इल्म है। ये गलत सोच है, गलत कॉन्सेप्ट है। दीनी और दुनियावी इल्म इस तरह से फर्क नहीं किए जाते। अगर आप कुरान का इल्म, हदीस का इल्म, फिका का इल्म पैसा कमाने के लिए हासिल कर रहे हैं तो ये दुनियावी इल्म है, वो दीनी इल्म नहीं। मदरसों में भी वो दीनी इल्म नहीं। और साइंस पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो अल्लाह को पहचानने के लिए, तो ये दीनी इल्म है, ये दीनी इल्म है। तुम्हारी सोच से ही दीनी और दुनियावी का फर्क होता है, ना कि डिपार्टमेंट और शोबे से फर्क होता है। इसलिए जो बच्चे कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, वो अपना कंटिन्यू करें, बढ़े आगे। तुम जिस फील्ड में जाना चाहते हो, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, लॉ में, जिस चीज में भी जाना चाहते हो, नीयत सिर्फ ये हो जो कुरान ने फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो वही जो तुम्हारे रब के नाम से। सुभान अल्लाह। वो इल्म जो अल्लाह से दूर करता है, वो बड़ा सा बड़ा आलिम होकर के भी वो गुमराह है। और वो इल्म जो अल्लाह से करीब करता है, वही इल्म नूर है, वही इल्म नूर है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, सिर्फ ये मत समझो कि मैं इल्म की बात कर रहा हूं तो इल्म आने के बाद टोपी, जुब्बा, कुप्पा, बड़ा आलिम नजर आना चाहिए। नहीं, इल्म जब किसी के पास आता है तो सबसे पहले अखलाक लाता है। सच्चा इल्म अगर किसी के अंदर आए, अखलाक लाता है, फिर वो अल्लाह ताला की जात पर यकीन लाता है। क्योंकि कुरान कहता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, इल्म वाले ही अल्लाह से ज्यादा डरते हैं। इमाम गज़ाली फरमाते हैं वो आलिम जो अपने इल्म को इसलिए इस्तेमाल करता है कि दुनिया में कुछ पैसे मिल जाएं, और सेठों के पास जाता है, मालदारों की जेब पर नजर रखता है, फरमाते वो उस मक्खी से ज्यादा गलीज है जो पखाने पे बैठती है। बल्कि वो कहते हैं वो औरत जो अपना जिस्म बेचती है उससे भी ज्यादा ये गलीज है, क्योंकि वो जिस्म बेचती है और ये ईमान बेचता है। इल्म जो सच्चा इल्म आता है वो अखलाक और तवक्कुल ले आता है। इसलिए आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि इल्म का मतलब सिर्फ दौड़ भाग ये नहीं है। कोई भी कॉलेज मिल जाए, कोई भी यूनिवर्सिटी मिल जाए, कोई भी मदरसा मिल जाए, तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए वो इल्म मुझे मिले जो मुझे मेरे रब की पहचान दिलाए, मुझे मेरे रब की पहचान दिलाए। और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम से कोई शुरू करता है, मेरे अजीजों, बड़े बड़े इनकलाबात आते हैं, बड़े बड़े इनकलाबात आते हैं। ये आज दुनिया छुपा छुपा कर रख रही है। हमारे दामन में उलमा की कमी नहीं रही इस्लाम में कभी। ये तो जाहिल आज हुई हमारी कौम,
वरना दुनिया को क्या नहीं दिया है उलमा इस्लाम ने। आपको पता है ये सब जो उठाए हुए कैमरे हैं ये किसकी देन है? सबसे पहले इब्नुल हैसम ने ये कैमरे की इजाद की थी और उसकी थ्योरी भी बनाई थी अपनी आंखों के लेंस से। दुनिया को उड़ने का तरीका देने वाला अब्बास बिन फराज सबसे पहले प्लेन बनने से भी पहले उड़ करके एक मीनारे से पैराशूट का तस्वुर देने वाला, एक्सरे का तस्वुर देने वाला आलिम इस्लाम है। खवारज़मी ने घड़ी का तस्वुर दिया है। अलजिब्रा इस्लामी उलमा ने तुम्हारे सामने रखा है। आज जो ये हिंद से लिखे जाते हैं 1 2 3 ये आदात कहां से आए? इस्लामी उलमा ने इसको इजाद की। इजादात की एक लंबी फेहरिस्त है। आज भी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के अंदर, अमेरिका के अंदर तिब में, मेडिकल में और बच्चों की सर्जरी पर जो लिखी गई सबसे पहली किताब वो अली सीना की है। अल कानून आज भी रखी हुई है। पूरी दुनिया को सर्जरी सिखाने वाले, पूरी दुनिया को मेडिकल लाइन में लाने वाले इस्लामी उलमा है। बच्चों के अमराज पर सबसे पहली लिखी जाने वाली किताब उलमा इस्लाम की। इतना तो कोई भी आलिम दीन तुम्हारे साथ ताउन कर सकता है। आज से करेंगे इंशाअल्लाह। 2025 तुम्हारा पूरा सीरत मुस्तफा पढ़ने में गुजरना चाहिए, गुजरेगा इंशाअल्लाह। इस बात को आज तय करके उठो कि मैं मेरे नबी का गुलाम हूं, तो मैं पहले ये पढ़ूंगा कि मेरे नबी कब पैदा हुए, उस वक्त हालात क्या थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन कहां गुजरा, हुजूर पाक ने पहली शादी कहां फरमाई, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद कितनी हुई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में जलीलुल कद्र कौन है, हुजूर मक्का में कितने दिन गुजारे, मदीने में कितने गुजारे, कौन सी जंगों में शरीक हुए, कौन सी जिहाद में, कौन सी जंग में हुजूर पाक के दंदाने मुबारक शहीद हुए, कौन कौन सी मुसीबतें हुजूर ने उठाई और क्या क्या दुआएं उम्मत के लिए की, ये सब तुम्हारे हिस्से में आना चाहिए। और मुझे शेर व शायरी याद भी नहीं रहती है मेरी तकरीरों में, मैं भूल भी जाता हूँ। हाँ, बस आला हज़रत के अशार वैसे ही आ जाते हैं। अर्ज किए थे बस थोड़ी देर। दास्ताने गम सुनाऊं कैदे ज़िंदा की मेरी, वहशते जुल्मों सितम से कब कपाई जा मेरी, वहशते जुल्मों सितम से कब कपाई जा मेरी। क्या है आजादी बताओ, कौन है आजाद अब, क्या है आजादी बताओ, कौन है आजाद अब। हो गई लंबी सजा एक शेर पढ़ते ही मेरी, हो गई लंबी सजा एक शेर पढ़ते ही मेरी। जुर्म है बस ये मेरा, हक बोलता हूं बरमला, जुर्म है बस ये मेरा, हक बोलता हूं बरमला। चाटना तलवे किसी के है नहीं फितरत मेरी, चाटना तलवे किसी के है नहीं फितरत मेरी। और लोगों को पता भी होगा, जब यहां मुझे लेने आए थे हमारे रिश्तेदार और बहुत बड़ी जमात में आए थे, कैद के दिन का वो मंजर और अजीजों का समंदर, कैद के दिन का वो मंजर और अजीजों का समंदर, देख कर घबरा गया तागूत भी इज्जत मेरी, देख कर घबरा गया तागूत भी इज्जत मेरी। जांच में मेरी किसी शोबे ने छोड़ी ना कसर, कोई शोबा बचा नहीं, जितने डिपार्टमेंट थे सबने लगा दिया। इसको अर्ज करते हैं, जांच में मेरी किसी शोबे ने छोड़ी ना कसर। बात आई हर तरफ से जुर्म था गैरत मेरी, बात आई हर तरफ से जुर्म था गैरत मेरी। हर सिपाही पूछता था पांव के नीचे बिठाकर, ये दिन हमने देखे कंटिन्यू। हर सिपाही पूछता था पांव के नीचे बिठाकर, क्यों नहीं डरता है देखकर हैबत मेरी, क्यों नहीं डरता है देखकर हैबत मेरी। बोलता मैं साहब जी क्या कहूं लग जाएगी, बोलता मैं साहब जी क्या कहूं लग जाएगी। आज है बस वक्त तुम्हारा याद रखना बात मेरी, आज है बस वक्त तुम्हारा याद रखना बात मेरी। बेड़ियां पहना के मुझको
ला के डाला जेल में, सख्त पैरा संतरी का बढ़ गई हैरत मेरी। छोटी सी एक कोठरी थी और दरवाजे भी बंद, कब्र का मंजर लगे, गुजरी थी ऐसी रात मेरी। रात थी कटती नहीं, दिन लगे हफ्ते के भर। रात थी कटती नहीं, दिन लगे हफ्ते के भर। कैदियों को देखकर बढ़ती थी फिर वहशत मेरी। जी कभी खाने को करता ही नहीं था जेल में, जी कभी करता ही नहीं था, जी कभी खाने को करता ही नहीं था जेल में। यूं भी हर दिन हो गई रोजे की आदत मेरी, यूं भी हर दिन हो गई थी रोजे की आदत मेरी। अहले खाना की वहां पर याद आती थी बहुत, और अजीजों की मोहब्बत जो कमाई थी मेरी। मेरे उस्ताद और भाई, मेरे शागिर्द और अजीज जेल में आए थे मिलने, लग रही थी ईद मेरी। जेल में आए थे मिलने, लग रही थी ईद मेरी। कैद का गम जब बढ़े तो याद करता था मैं ये, कैद का गम जब बढ़े तो याद करता था मैं ये। बुजुर्गों से सख्त बढ़कर थी नहीं हालत मेरी, बुजुर्गों से सख्त बढ़कर थी नहीं हालत मेरी। गिर के सजदे में खुदा से गिड़गिड़ाता था बहुत, जानता है वो ही बस एक कैद की हालत मेरी। मुस्तफा को याद करना थी मेरे गम की दवा, मुस्तफा को याद करना थी मेरे गम की दवा। गम बदल जाते खुशी में देखकर किस्मत मेरी, गम बदल जाते देखकर किस्मत मेरी। फख्र है इस बात पर कैदी बना उस नाम पर। लब्बैक या रसूल अल्लाह। फख्र है इस बात पर कैदी बना उस नाम पर। ये तो है सुन्नत बिलाली बन गई किस्मत मेरी, ये तो है सुन्नत बिलाली बन गई किस्मत मेरी। उसके बाद फिर हमने जमकर ये कहा था, हाथ में बेड़ी ही क्या डाल दो गर्दन में भी अब, हाथ में बेड़ी ही क्या डाल दो गर्दन में भी अब। है उन्हीं के नाम का सब जिंदगी और मौत मेरी, है उन्हीं के नाम का सब जिंदगी और मौत मेरी। जब हुआ एहसास मुझको, जब हुआ एहसास मुझको बात का ज़ंदान में, इस बात का ज़ंदान में छट गया गम और डर, फिर बढ़ गई जुर्रत मेरी। छट गया गम और डर, फिर बढ़ गई जुर्रत मेरी। और आखिरी शेर, इसलिए करता है ऐलान झूम कर सलमान अब। ये खुलासा है और पूरी दास्तान इसमें। इसलिए करता है ऐलान झूम कर सलमान अब। जेल थी न कैद थी, बढ़नी थी बस इज्जत मेरी।